Namaste, Jai Hind, and welcome, ladies and gentlemen. He's back. He's back in the NDA and he's still the Chief Minister. 9 times he's sworn himself in as Chief Minister, and this is a dramatic return back into the NDA fold. No matter which side, be it the Mahagathbandhan or the NDA, UPA erstwhile or the NDA, whichever were the side, Nitish Kumar has ensured that he is firmly ensconced in that kursi of the Chief Minister. Now, this oath ceremony was attended by BJP Chief JP Nadda, who just addressed a press conference, and he said that the India alliance is a Vifal alliance. 8 other ministers also took oath of office along with Nitish Kumar for the new Bihar cabinet. BJP Samrat Chaudhary and Vijay Sinha were sworn in as deputy chief ministers. Remember, speculations were rife that Bihar chief minister is not getting along well with ally RJD. Nitish Kumar's return to the NDA has come amid a bit of face-off with the RJD and also the Congress. Nitish turning his back on the alliance and his ghar wapsi into the NDA. The RJD lashing out at Nitish Kumar, calling him a thaka hua Mukhyamantri or a tired chief minister, saying, we made a tired chief minister, thaka hua Mukhyamantri work. That's what Tejasvi Yadav literally said. The Congress clearly frustrated with allies turning their back, the setback with Mamata Banerjee and Trinamool in Bengal, and now Nitish Kumar, who is actually the Sutradhar, who is the one who actually brought this entire alliance together in the first place, traveling the length and breadth of the country, meeting opposition leaders, stitching together, cobbling together this alliance of 26 partners with the hope of becoming convener. Now, he's the one who's walked out. He's the one who's walked out. So he takes oath as chief minister, and the Congress lashes out. RJD calls him a chameleon. The BJP says he's back where he actually belongs. अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना। कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। इसका मतलब यही है कि इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो 1 दिन 2 दिन में ही होने वाला है। पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये हो गए। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे, और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। बिहार के लिए बहुत जरूरी यह था कि एक अच्छी सरकार बने। बिहार की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना। सब मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए जरूरी था, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए जरूरी था, बिहार के भविष्य के लिए जरूरी था। Saurabh Rathod joining us live from the Raj Bhavan in Patna. What's the inside story, Saurabh? Everybody is saying a lot of things about Bihar. Is it all about the 40 Lok Sabha seats? Yes, it is. And before that, I would like to put the concentration on the figures of the caste-based survey that was conducted. 64% of the population of Bihar belongs to OBC, EBC category, and 24%, around 21% belongs to SC and ST category. So today, when the oath ceremony took place, one must note that the leaders who were there, who took the oath,
they belong to SC community, OBC community, EBC community, general. So all the caste combination was present in that oath ceremony. Be it Nitish Kumar, who is himself a Kurmi OBC leader, the Samrat Chaudhary is EBC, the Query. So Love Kush combination was there. SC was Dr. Suman, who is the son of Jitan Ram Manji, and EBC was Dr. Prem Kumar, who comes from Kahar community, and Rajput Sumit Singh was there, and in fact Vijay Sinha, who himself is a Bhumiyar. So what I am saying is that the benefit of caste-based survey that was conducted, which Tejashwi Yadav is trying to take credit of, the benefit has gone to JDU and BJP now, where we see the whole the first oath that was taken. So was, Saurabh, you are having saying all jiski those, jitni sankhya bhari is manifest in the oath taking ceremony itself. But then there is also a solid Yadav vote about 14%. There is a Muslim vote which is about 17%. See, one card is still left of speaker. What we had the information that the speaker will be Nand Kishore Yadav. So he is from Yadav community. So it's not decided yet, but that card is still pending. And as Nitish Kumar said, that the rest of the post will be decided soon. And so we are hoping that the speaker will be from Yadav community, and Nand Kishore Yadav is the front runner in that list. Well, thank you for that update, Saurabh. You put matters in perspective. It is the 40 seats of the Lok Sabha, but then it is also bringing into this play the caste census, which Nitish Kumar believed is going to be perhaps the trump card when we conduct the caste survey, and that will become the Trump calling card. The Congress, though reluctant, fell for it, bit the bullet, and then tried to champion jiski jitni sankhya bhari, and now is it now going to come back to bite them? It's a big question. Manish Bariyar, spokesperson of the Bihar BJP with us, Anjum Ara, spokesperson of the JDU with us, Ajay Yadav, spokesperson of the RJD with us, and Kamru Chaudhary, political analyst, leans towards the Congress party with us. Namaste, Jai Hind, Jai Bharat to everybody. My first question to Manish Bariyar. यहाँ पर अवसरवादी कौन है मनीष जी? Who is the opportunist here? So I would say that first good evening to you and all the co-panelists. अवसरवादी तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि बिहार का जो हित है उसको ध्यान में रखते कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, तो I would say that it is in the best interest of the people of Bihar, and as our national president was when he was doing the press conference, he was very clear that the people of Bihar wanted this change, and he was thankful to Honorable Chief Minister that he took this decision, because he was not happy there. And for the last couple of years, Bihar was going down. There were a lot of, in fact, I don't want to get into specifics, but people were not very happy. The governance was stalled, and because of that, some decision was taken, and BJP took notice of that for the overall benefit of the people of Bihar. So I think if it was always the benefit and overall benefit of the people of Bihar, then Nitish Babu should have never left the NDA. He was with the NDA when he said, I can't survive there, मर जाऊंगा पर वापस नहीं जाऊंगा अंजू महाराज जी. फिर क्या हुआ? और उधर बीजेपी ने भी कहा था आप तो कभी भी इनके साथ वापस नहीं जुड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा, नहीं करेंगे. So who's the opportunist here? ये क्यों हुआ है? मुझसे सवाल है जी अंजुम जी. तो एक थोड़ा सा मैं वीडियो सुना दूं, अगर अपॉर्चुनिस्ट की बात कर रहे हैं आप तो सुनिए. नीतीश कुमार जी पिछले दरवाजे से एंट्री कर सकते हैं, कहां करेंगे? अब कौन कराएगा? कहां एंट्री करेंगे? कौन कराएगा? हमको जनता माफ करेगी क्या? फिर हमारे चाचा को पलटू कहती हैं, कल को हमको पलटू कहेगी. आज हमारे चाचा को अवसरवादी कह रही, कल हाँ, तो वही चीज मैं कह रही हूँ. अवसरवादिता की अगर बात कर रही है, देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब जननायक कौन सा ऑडियो सुना है, क्या ऑडियो सुना है मुझे नहीं मालूम, ये अनवेरिफाइड है, ये आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये मेरा ध्येय है कि मैं ये साफ कर दूं. अंजुम जी बोलिए. जी, मैं पूरी जवाबदेही के साथ मैं ये ऑडियो जो मैंने सुनाया मैं आपको भी भेज दूंगी, और ये एक न्यूज चैनल पे ये दिया गया इंटरव्यू का वीडियो ऑडियो दोनों है, मैं आपको भेज दूंगी. तो जहां तक ये बात रही अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है,
तो अगर जो लोग भी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ये बताइए, अगर पलटी मारने की बात होती है, इधर उधर की बात होती है, तो जो लोग कर रहे हैं क्या वो इधर उधर नहीं हुए हैं? हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जब जयंती शताब्दी समारोह के मंच से स्पष्ट कहा था कि मैं जो भी निर्णय करता हूं बिहार के हित के लिए करता हूं, और जो भी निर्णय करूंगा बिहार के हित के लिए निर्णय करूंगा। और मुझे लगता है किसी भी सरकार की ये अकाउंटेबिलिटी और उसकी जवाबदेही बनती है कि वो जनता से जो वादे करते हैं उन वादों को वो निर्वहन करने के लिए निर्णय करे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो अभी इस्तीफा आज दिया, और इस्तीफा दे करके सबसे पहले मुखातिब वो किससे हुए? वो आप लोगों से मुखातिब हुए, और उन्होंने कारण बताया कि क्या कारण था इस्तीफा देने का। काम करने में दुश्वारी हो रही थी, सारी बातों को उन्होंने बताया। और जब पर काम करने में दुश्वारी पर अंजुम जी देखिए, बिहार का हित है कि उस कुर्सी में जो उनका चित्त अटका हुआ है उसकी वो असली वजह है। चित्त यानी कि उनकी चेतना उस कुर्सी में अटकी हुई है, वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते। 2 साल की अवधि के अंदर उन्हें कुर्सी छोड़नी थी तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि उनको लगा था कि नेशनली उनका कुछ का वहां पर्चा बुलंद होगा, पर वो भी नहीं हुआ। कन्वीनर नहीं बने इंडिया अलायंस के, तो वहां भाग नहीं खुले। तो अब यहां से कुर्सी जा रही थी क्योंकि तेजस्वी प्रेशर बना रहे थे, राजद प्रेशर बना रहा था। ऐसा तो नहीं है। देखिए, 2 चीज। पहली बात कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को जो मैंडेट बिहार की जनता ने उन्हें निर्वाचित करके भेजा है, किसी के रहमो करम पर वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। 2005 के बाद से चाहे हमारे अलायंस में जो भी घटक दल रहे हों, ये मैं याद दिला दूं कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव लड़े गए 2005 के बाद से लेके 2020 तक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और बिहार की जनता ने उनके लीडरशिप को फुल मैंडेट दिया, उनके किए गए वादों पे पूरा मोहर लगाया, निर्वाचित करके भेजा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित है, पहली बात, मनोनीत नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मैं स्लिप कर गई। दूसरा क्या आपने कहा? दूसरा प्रश्न ये था कि कुर्सी हाथ से जा रही थी, किसी भी तरह से कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इसीलिए तो नहीं किया, क्योंकि 2 साल के अंदर से कुर्सी छोड़नी थी। यही तो अंडरस्टैंडिंग थी ना कि 2 साल में भाई मैं निकल जाऊंगा, लोकसभा के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब हैं, वहां पर मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेलूंगा, तो बिहार की गद्दी तुम संभालना। ऐसा कहीं उन्होंने वादा तो नहीं किया था तेजस्वी को, और तेजस्वी उस वादे पर खरे उतरने की डिमांड तो नहीं कर रहे थे। आज भी कुर्सी पर है वो, आज भी कुर्सी पे, कुर्सी से उतरने का खतरा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उन्हें निर्वाचित करके भेजा। मैं पुनः कहूंगी, ऐसा कभी नहीं रहा। और कुर्सी पे खतरे की अगर बात कर रहे हैं तो हमने छोड़ा, हमने इस्तीफा दिया, समर्थन वापस नहीं लिया, हमने छोड़ा ना। हम अगर कुर्सी पे खतरे की अगर आप बात करते ना कि इस खतरे की वजह से ऐसा, तो ऐसी बात नहीं, हमने छोड़ा। उसके भी कहा पर्दे के पीछे उसकी भी एक गारंटी ली गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। एजिया जी देखिए, सारी मेहनत अभी तेजस्वी यादव जी, इस बात को अच्छा, गारंटी ली गई थी, किसने कहा है? अब यही मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने कभी कहा है क्या इस बात को? नहीं अंजुम जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा? एक दिन में तो ये फैसला लिया नहीं गया होगा, पहले ही बात की होगी, कुछ तो गारंटी मिली होगी, इसीलिए तो वादा हुआ होगा, एश्योरेंस मिला होगा, इसीलिए तो उन्होंने एक कदम उठाया है। वरना कोई रातों रात तो ऐसे कदम नहीं उठाएगा। ना उन्होंने हमें बताया, ना उन्होंने लालू जी को बताया, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया। लेकिन एजिया जी, थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम करवाया, ऐसा तेजस्वी जी कह रहे थे। बिल्कुल तेजस्वी जी सही कह रहे थे। 15 महीने या 16 महीने जो तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, आप देखें कितना ज्यादा काम हुआ। टूरिज्म विभाग ले लीजिए, IT विभाग ले लीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जिस तरह से उनका वादा था 10 लाख नौकरी, आप देखें 70 दिनों में 2,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। ये लोग जो 18 साल में नहीं कर पाए, तेजस्वी जी 15 महीनों में किए और मुख्यमंत्री जी से करवाए। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता नहीं ये लोग 18 साल में कौन कौन काम कर लिए, वो तो मुझे नहीं मालूम। अगर 70 दिनों में ये तेजस्वी जी 2.25 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो 18 साल में तो ये करोड़ों में नौकरी दे सकते थे। इनका तो वादा था। पर अब आप ये तो मानेंगी कि आपको भी जिसकी जितनी संख्या भारी पे मनवा लिया, कांग्रेस को भी मनवा लिया, सबको मनवा लिया, और जाकर एनडीए में बैठ गए। आप संख्या भारी उनकी लग रही है। कास्ट कॉम्बिनेशन में भी देख लीजिए, जातीय कॉम्बिनेशन में भी देख लीजिए। देखिए, जातीय जनगणना का श्रेय पूरा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को ही जाता है, क्योंकि शुरू से ये लोग अडिग थे कि करवाना है। अंत में नीतीश कुमार जी का सहयोग मिला। तो ये नीतीश कुमार जी को ये समझना होगा कि जनता चुनती है, जनता चुनती है तभी तो उनके 40+ विधायक है ना।
जनता चुनती है तभी तो हमारे 79 विधायक है ना, जनता चुनती है तभी तो बीजेपी के 78 विधायक है ना। बीजेपी के साथ चुनाव लड़े तो 40 पे अटक गए, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे तो उनका भी करीब 70+ था। ये वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आखिर जब जनता चुनती है तो 40 ही उनके विधायक चुन के क्यों आते हैं? इतने बड़े चेहरे हैं, 18 साल में इतना काम किए, 70 दिनों में जब तेजस्वी जी 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करा सकते हैं, तो इनके पास तो डबल इंजन का सहयोग रहा 18 में। पर अब ये डबल इंजन तो लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ेगा, तब आपकी गाड़ी कहीं डीरेल ना हो जाए। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। इससे जल्दी, बिफोर आई ओपन इट अप टू एवरीबody, बिकॉज कई लोग आपस में दे वांट टू रिबट, बट कामरू चौधरी, where does the Congress go from here, and what happens to the India alliance? Anand, before coming to your question, you know, today the funniest part and the most difficult job tonight is to be a JDU spokesperson. You know, how do you defend the Paltu Ram of today's politics? You know, it's very shameful. Even when I belong to a political family, you know, this type of behavior, you know, I also cannot say them. Be it JDU, be it BJP, or be it Congress. The entire politics, these same people, they turned Nitish Kumar Sushashan Babu to Kushashan Babu, and then they defended his all other activities that he was doing in Bihar. They criticized him for being a mullah, for hosting iftar parties. They criticized him for the caste census. They criticized him for what not that was wrong in Bihar, the Jungle Raj. Suddenly, you find you have videos of Amit Shah going viral on social media, claiming that Nitish Babu का दरवाजा वापस बंद हो चुका है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट नीतिहीन नीतीश बाबू है आज का डेट में पॉलिटिक्स में। एंड आई लाइक जब वो आपके साथ जुड़े थे, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जुड़े थे, तब तो पलटू नंबर 8 था ना वो। तब आपने क्या कहा? तब आपने तो ये नहीं कहा, यू डिडंट से दिस एट दैट टाइम, कामरू चौधरी। Of course, we need, as a congressman, you know, as a congressman, born congressman, I can say tonight that this is a very good beginning for Indian politics right now. You know, honestly speaking, not belittling any of the regional parties, but the JDU is on its way out from national politics, from Bihar for sure before 2025. You wait and watch. But the basic point that I want to drive here, Anand, one thing is the 60% of the population that is opposed to the BJP. Now completely they are beginning to realize one fact, that it is only the Congress party which is able to fight, and which has the will to fight the BJP. The party that gets more than 50% of the vote shares will run away with the election, or the alliance that gets more than 50% of the vote share will run away with the election. It's about numbers. Bihar is 40 seats, Bengal is 42 seats, 82 there, and 80 seats of Uttar Pradesh is 162 seats only in these 3 states. Where the Congress today finds no traction, sir. Where the Congress today finds no traction. Now, if you don't find any traction here, the remaining 300 seats where you are in a direct fight with the BJP, how do you stand a chance? Because within your own alliance, there is a no confidence that's being shown. That's what's happening. Arrogance of the Congress, and as alleged by Mamata Banerjee, not me, that the left is trying to call the shots, is causing problem. The person who brought all of these people together, sir, today has said, thank you very much, bye-bye. It's a big statement, sir. It's a big statement. But other panelists have to say, so I'll open it all to one by one, all of you. Yes. Let me rebut you. Yeah, Manish ji, sir, you can rebut everybody together. We got limited time. It's a half-hour show, so that's why. Yes, so Manish ji. Yeah. You know, I've been, in fact, on different channels, I've been putting the view that India Alliance or India Alliance as it is called, was always a bundle of contradictions. Now, you know, Mr. Nitish Kumar has moved out because he didn't have the trust in the leadership of Congress to take this ship forward. So it was very natural that he could have not stayed there for a long period of time, because an alliance that was an opportunistic alliance had no vision, no common distinct. It was only anti-Modi. And I would like to rebut Mr. Kamaruddin Chaudhary. Does he really feel that Mr. Tejaswi Yadav and Mr. Lalu Prasad Yadav's family is such a model family that Congress has been sticking with it for such a long period of time? Somebody who's a convicted person. And you are talking about, look at, you know, every state where a Congress party has been making its alliances. Most of the people are convicted, or they have some serious corruption charges. So what do you really give more importance to?
Do you give Sir, the importance to 9-10%, corruption? 9-10% exponential gain that the Congress BJP is hoping to get to cross that magical 52% vote share number because the JDU comes along with it. That's what it is, sir. Let's not beat around the bush and accept that fact that there is going to be perhaps an exponential gain that the BJP JDU alliance on ground with the caste combinations considered is going to get, and that's exactly why the BJP has opened the doors which said will never open. And Nitish Kumar has come back and said, at least chalo, let me thank or say kiss the entire aspirations of being Prime Minister goodbye. At least I'll continue to remain Chief Minister. Anju Maharaji, you wanted to respond to Ajay Yadav? Please, jaldi, Ji. अंजुम जी, थका हुआ मुख्यमंत्री कहा था तेजस्वी यादव ने नीतीश जी को। नहीं, फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं। अगर थका हुआ मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, तो ये मुख्यमंत्री शिक्षक बहाली जो हुई उसके पोस्टिंग में इनकी गड़बड़ी को नहीं होने दी। ये थका हुआ मुख्यमंत्री फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। क्या इस बात से वो डिनाई करेंगे कि जो हमारे विभाग था, राजस्व विभाग, जिसमें इतना तेला बेला करने की कोशिश हुई कि वहां की फाइल मंगा करके आदरणीय उस थका हुआ, जिसको सो कॉल्ड ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को रिव्यू करना पड़ा। ये क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि खनन भूतत्व विभाग में इतनी गड़बड़ियां, माफियाओं से कनेक्शन, जो प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश है ये चीजें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फाइलें मंगा करके उसकी समीक्षा की और उसको उन्होंने देखना शुरू किया। ईडी का आना और जाना, क्या इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि अगर ये जेल में जाएं अपने कर्मियों की वजह से, तो हम पर्ची लगा करके खड़े रहे कि मुझे इनसे मिलना है? तो देखिए, ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप समझ सकते हैं कि उनकी मन स्थिति अभी क्या है। फ्रस्ट्रेशन में वो जवाब बोल रहे हैं, जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। और एक चीज और कांग्रेस की जो प्रवक्ता शर्म की बात कर रहे थे ना, तो जरा वो शर्म कर ले कि इनके राहुल गांधी, ममता दीदी ने उन्हें इंडी गठबंधन के वो अलायंस है और उनको इजाजत तक नहीं दिया। शर्म इन्हें करनी चाहिए कि आपके आदरणीय केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दिया पंजाब में उनकी स्थिति क्या रहेगी। इन्हें शर्म करना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन्हें नसीहत दी है कड़े शब्दों में कि ये गैर जवाबदेही रवैया जो है उसको खत्म करिए। तो हमें नसीहत देने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पहले जाकर के अपने आदरणीय नेता राहुल जी को नसीहत दे। दूसरी बात, एक चीज और, एजाज यादव जी भी सारा क्रेडिट ले रही थी, यही बड़े बोला पर जो है ना राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए, जातीय आधारित सर्वे जो था वो सर्वदलीय और दोनों सदनों से लिया गया निर्णय था और वो एग्जीक्यूट हुआ। क्या कह रही है कि हमने करवाया। 7 निश्चय पार्ट 2 पे ये महागठबंधन की सरकार चल रही थी और आगे भी चलेगी। 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला हमारा क्या कमिटमेंट जनता की आवाम से नेता का था, नेता का 7 निश्चय पार्ट 2 पे पहला जो था युवा शक्ति, बिहार की ताकत। तो उसी 7 निश्चय पार्ट 2-1 का जो है हमारा एग्जीक्यूशन इतनी सरकारी नौकरियों में, लेकिन क्या कह रही है कि हमने करवाया। आज हिंदुस्तान के जितने भी अखबार देश आपने करवाया या किसी और ने करवाया, लेकिन अब जो हो रहा है वो एक अलग मंशा से हो रहा है। वहां पर बिहार के साधारण जनमानस, कैबिनेट निर्णय करती है ना, बिहार के साधारण जनमानस का कितना उत्थान होगा, या उनकी वजह से किस पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान होगा वोट का लोकसभा 2024 में, ये परिप्रेक्ष्य है। ये जरा बहुत क्लियरली देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब आर्ग्यूमेंट बिहार की जनता के हित की तरफ घुमा रहे हैं और मेरा ध्येय सिर्फ वही लक्ष्य है कि आपका लोकसभा चुनाव में कितना हित होगा। वी हैव टू पॉज हियर। आई थैंक यू ऑल फॉर टू आवर गेस्ट। ये मैंने कहा छोटा ब्रॉडकास्ट, इट्स अ शॉर्टर ब्रॉडकास्ट, बट वी विल टेक फॉरवर्ड दिस स्टोरी लेटर टुनाइट, लेडीज एंड जेंटलमैन। बैक लाइव at 8 p.m. and thereafter the big debate on this Sunday evening at 9 p.m. here on CNN News 18. Stay with us.